everyone, this is Tuti Varshne. Today I am going to teach you a very important concept of organic chemistry, and that is Lewis dot structure. So, as you can see from the name, what do we going to do here? हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? We are going to draw some structures. हम structures draw करने वाले हैं, जिससे नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं. We are going to draw some structures. Okay? So in this, we are going to study about concept of Lewis dot symbols, then octet rule, and then how to draw the Lewis dot structures. Okay. So before understanding Lewis dot structures, हम एक analogy समझते हैं. We should understand about these Lewis dot structure through an example. So if I ask you, क्या आपकी लाइफ में कोई आइडल है? डू यू हैव एनी आइडल इन योर लाइफ? मीन्स दैट पर्सन, अ पर्सन whom you admire so much. एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा हो जिसको कि आप इतना ज्यादा एडमायर करते हो, जिसको आप क्या समझते हो? आइडियल समझते हो. इज देयर एनीवन इन योर लाइफ? इट कुड बी एनीवन, लाइक cricketer, a teacher, anyone. It could be your friend, your mother, anyone. So when you see that person, आपको क्या लगता है कि that person is so stable. Stable means that you think that that person is perfect. तो आपकी नेचुरली आपके माइंड में क्या आता है कि हमें उस पर्सन के जैसा बनना है, तो आप उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसके कुछ फीचर्स अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं. यू थिंक दैट दैट पर्सन इज सो स्टेबल. जस्ट लाइक दैट नोबल गैसेस आर लाइक द आइडियल पर्सन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. मतलब कि नोबल गैस जो होते हैं, सारे एलिमेंट्स नोबल गैस का क्या है, कन्फिगरेशन पाना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो नोबल गैसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं. सो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल वांट टू हैव नोबल गैस कन्फिगरेशन, एंड नोबल गैसेस हैव व्हाट? 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. तो वो क्या चाह रहे हैं कि जो उनका वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. सो नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रॉइंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लुईस डॉट सिंबल्स. ओके, लुईस डॉट सिंबल्स. नाउ टेल मी, ग्रुप 1 में, in group 1 take one element. I'm going to take lithium. Okay, lithium. How many electron lithium has in its valence shell? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास? केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? सो we'll show dot here. अब ये डॉट क्या है यहाँ पर, ये बताओ मुझे. डॉट का मतलब क्या है यहाँ पर? कोई आसमान में चमकता हुआ तारा है? नो, this dot is representing what? Electron. So lithium has one electron in its outermost shell. Just like that, group 2, beryllium has 2 electrons in its valence shell. Group 13, boron has 3 electrons in its subshell. Group 14, carbon has 4 electrons in its valence shell. Group 15, nitrogen has 5 electron in its outermost shell. Group 16, oxygen has 6 electrons in its outermost shell. Group 17, fluorine has 5 electrons, 7 electrons in its outermost shell. Group 18. Now group 18 is what? Are ideal people, noble gases. So noble gas have how many electrons in their outermost shell? That is 8 electrons, except for helium. Helium has 2 electrons in its outermost shell. Helium 2 electrons, and if I take neon, neon has 8 electrons. Okay, any doubt till here? Okay. Now
Now coming to octet rule. Okay. Now what is octet rule? What does octet means? Octet means having 8 electrons. 8 electrons where? 8 electrons in the last valence shell, outermost shell. Okay. So as I told you that elements try to have 8 electrons in their valence shell. What it is written? Atoms that can combine either by transfer of electrons from one atom to another atom by sharing of electron in order to have an octet in their valence shell. तो देखो octet complete करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्टेट दो तरीके से कंप्लीट हो सकता है. पहला है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या एक्सेप्ट करके. ठीक है. दूसरा है क्या? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू. ठीक है. सो फर्स्ट इज थ्रू transfer of electron. Okay. And second, by mutual sharing of electron. So in first one, let's take the example of NaCl. Na, how many electrons Na has in its valence shell? As I told you earlier, group 1 has 1 electron in their outermost shell. So sodium will also have 1 electron in its outermost shell. यहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे केवल एक इलेक्ट्रॉन. नाउ क्लोरीन, how many electrons chlorine has? How many electrons chlorine has in its valence shell? 7 electrons. 7 होते हैं. So represent करेंगे 1 2 3 4 5 6 and 7. So सोडियम क्या करेगा यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा. किसको? क्लोरीन को डोनेट कर देगा. इस तरीके से ये गया इसके पास. अब बताओ मुझे, दोनों के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कंप्लीट हो गया इसका पूरा ऑक्टेट. और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. ठीक है. तो क्या बनाएंगे ये? Na प्लस एंड Cl माइनस. ओके. नाउ बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब ये कैसे होता है? आपस में क्या करना है? इनको शेयरिंग करना है. शेयरिंग इज केयरिंग. ओके. क्लोरीन है हमारा. क्लोरीन के कितने होते हैं? 7 होते हैं. 1 2 3 4 5 6 and 7. Another chlorine 1 2 3 4 5 6 और 7. क्या करेंगे? ये आपस में शेयरिंग करेंगे. शेयरिंग कर ली इन्होंने. ठीक है. क्या हो गया? इनका दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया यहाँ पर. ओके. नाउ लूज डॉट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू टेल यू सम रूल्स. ठीक है. हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, खूब सारे बढ़िया से स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बट उससे पहले रूल तो जान लें, क्योंकि हर काम को करने से पहले कुछ ना कुछ रूल्स तो होते ही हैं. तो रूल्स जान लेते हैं पहले.
अभी देखो रूल्स देखते हैं, रूल्स। नंबर 1 रूल, सबसे पहला रूल क्या कहता है, हाउ डू वी चूज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हम कैसे चूज करेंगे, तो सेंट्रल एटम के लिए क्या होना चाहिए, वो सबसे कम होना चाहिए नंबर में। अब देखो जो क्लास में लोग हैं, मान लो कोई एक इंसान जो है एकदम अकेला रहता है, मैं मानती हूँ कि वो इंसान सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसको किसी से मतलब है नहीं है। तो ऐसे समझ लो कि जो सबसे लीस्ट नंबर में है और जो कि क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ, ठीक है। तो क्या है, लीस्ट नंबर होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साइज में सबसे बड़ा होना चाहिए, और साइज और क्या है, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होना चाहिए। इनमें से कुछ भी हो सकता है, ओके। सो लीस्ट नंबर, फॉर choosing central atom, it should be least in number, least in number और least electronegative और largest size और highest atomic number, okay. Now second rule is hydrogen and fluorine can never be central atom. So who can be central atom now? Oxygen, chlorine, sulfur, bromine, phosphorus, etc. Okay. Now, if there is a positive charge, it will be on सेंट्रल एटम। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कहाँ होगा, सेंट्रल एटम पर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कहाँ होगा, कॉर्नर वाले एटम्स पर होगा, ओके। लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल, if there is positive charge, it will be on central atom. If there is negative charge, it will be on corner atom. All right, I don't think there is a doubt, okay. Now कॉर्नर एटम्स का हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है। क्यों, जो सेंट्रल एटम होता है कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो जाता है, और कभी जो है सेंट्रल एटम जो है वो क्या करता है, एक्सपेंड भी कर लेता है अपने ऑक्टेट को, ओके। सो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम should be complete, but octet of
सेंट्रल एटम में और may not be complete. Okay, easy. Now, before understanding Lewis dot structure, हमको कुछ calculations भी करने हैं. Okay, calculations. कैलकुलेशंस. तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है हमको निकालने हैं इसमें Q. अब Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द एटम्स. सारे ही एटम के क्या? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ bonds. Lone pair electron is equal to Q minus bond pair electron. Okay, easy. Number of valence electron निकल जाएंगे. सभी एटम के प्लस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव चार्ज करना है. ठीक है. Now we can easily draw Lewis dot structures. इससे हम दुनिया के कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ सबसे पहला जो है H2, बहुत ही इजी है इसको ड्रॉ करना. कैसे ड्रॉ करेंगे? क्यों निकाल लेंगे सबसे पहले. क्यों क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी एटम के. हाइड्रोजन के कितने वैलेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? एक होता है. दो एटम्स हैं तो कितने हो जाएंगे? दो. सो 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड कितना दिख रहा है तुमको? अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, कितना बॉन्ड दिख रहा है? एक बॉन्ड दिख रहा है. 2 इंटू 1. लोन पेयर निकालना है तो Q माइनस बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 माइनस 2 मीन्स 0. यानी यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है. तो कितना बनेगा हमारा? ये बन जाएगा हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर. अब एक बात बताऊं मुझको, यहाँ हाइड्रोजन के ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं है. यहाँ तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है. तो हाइड्रोजन जो होता है ना वो डुप्लेट कंप्लीट करता है, ना कि ऑक्टेट. हाइड्रोजन के बगल वाली कौन सी है? नोबल गैस हीलियम है. पड़ोसी है दोनों, हाइड्रोजन और हीलियम. हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा? हाइड्रोजन विल ट्राई टू बिकम लाइक हीलियम. Okay, so it will try to complete its duplet, not octet. Okay, now coming to second one. F2. अब F2 में कैसे निकालेंगे हम? सेम काम करेंगे. क्या करना है? Q निकालना है. पहले Q निकाल लेंगे. Q कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जल्दी? फ्लोरीन में 7 होते हैं. 7 2 जा 14 इलेक्ट्रॉन.
Bond pair, same. 2. Lone pair, 14 minus 2, 12. Now we can draw F, F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Easy? Okay? Now coming to next, oxygen. Tell me Q here. What will be the Q? Q will be number of electron in outermost shell, that is 6 electrons are there. So 6 to the 18, sorry 6 to the 12. Sometimes I don't know what I say. Now bond pair electron. Bond pair will be, let's consider there is only single bond between oxygen. So 2, and lone pair electron will be 12 minus 2, that will be 10. Now let's draw it here. Oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now tell me octet of both oxygen is complete or not. Let's check. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet of this oxygen is complete, but this oxygen 1, 2, 3, 4. There are only 4 electrons. Octet is not complete. Okay. So what will happen? These 2 electrons will make a double bond here. Okay. This will make a double bond here. Okay. Now coming here to nitrogen. Find Q here. Nitrogen has 5 electron in its valence shell. So 10 electron here. Bond pair electron. Let's assume that nitrogen makes only one bond here. So 2. Lone pair electron 10 minus 2, and that will be 8 electron. Okay, now let's put 8 electrons here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Now tell me whether octet of both nitrogen is complete or not. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This nitrogen has its octet complete, but क्या इस nitrogen का octet complete हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, only 6. We need so there, what will happen? These 2 electron they will make triple bond here. Okay, these 2 will make triple bond here. There was something wrong. Let me make this again.
So n n. How many? Eight lone pairs are there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. Now this nitrogen has only 2 electrons. यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है. तो क्या होगा, ये जो 2 लोन पेयर है यहाँ पर 2 बॉन्ड बना देंगे. ओके. ओके, इजी. Now Cl2. Similarly, we will find Q. I think you can do this one. That is your homework. Okay. Now coming to next slide. H3O plus. Now this one is important. So let's find Q here. What is Q? Total number of valence electron of all the atoms. How many atoms do you see here? You see 3 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So oxygen has how many electron in its valence shell? 6 and hydrogen 1. So 6 plus 3 minus 1. How many? 8. Bond pair electron. Bond pair electron 3. 6 electron. Lone pair electron 8 minus 6, that means 2 electrons. Right now we can make easily O H H H. Now as I told you, if there will be a positive charge, it will be on oxygen. I mean central atom. Okay, now HCl. Now tell me, chlorine has how many atoms in its electrons in its valence shell? 7 electrons and hydrogen has 1. So we can find Q here. Q will be number of valence electron 7 plus 1, 8 electrons. Bond pair 2, lone pair 8 minus 2, that means 6 electron. H and Cl 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Easy. Now tell me the answer of this question. Tell me the answer of this question. Total number of non-bonded electrons present in NO2 minus ion based on Lewis theory. We can find through the formula. आसानी से निकाल सकते हैं. NO2 minus Q is equal to number of electron in outermost shells 5. Okay, 5 plus 12 minus 1. How many electrons? 16. No. What mistake I did here? Tell me. Do we have to subtract when there is negative charge or plus? We have to add this. How many electrons will be there? 18. Now bond pair electron we can find. How do we find here?
How do we find a bond pair electron? How many bonds are there? Let's assume this. Two bonds. So I would say 4 electron. Now lone pair. So there are 14 electron. Now tell me that all these 14 electron will be lone pair or they will make double bond too. So these 14 electron will either be lone pair or will contribute to making double bond here. So let's start filling here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Now octet is complete or not? Nitrogen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nitrogen doesn't have its octet complete. So what we will do? We will remove these electron and it will contribute to making the double bond. Okay, are you getting it or not? समझ में आया कि नहीं? अब नेगेटिव चार्ज कैसे निकालेंगे? नेगेटिव चार्ज निकालने का एक तरीका होता है. वैसे तो ये ऑक्सीजन बचा है तो इसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देंगे. लेकिन अगर हमको नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V माइनस L माइनस B बाई 2. ओके, अब मैंने मानी ये जो ऑक्सीजन है, मैंने माना कि ये जो ऑक्सीजन है इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया सेकंड. अब अगर मैं पहले वाले पर निकालना चाहूं फॉर्मल चार्ज तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा पहले वाले पर फॉर्मल चार्ज? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं. 6 माइनस लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2. 2 बाई 2. नाउ दिस विल कैंसिल. क्या चार्ज आएगा? -1. ओके, अभी मैं सेकंड वाले पे निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेगा? फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड वाली ऑक्सीजन पे कितना आएगा? 6 होगा. क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन -4 1 2 3 4. लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर में कितने दिख रहे हैं? 4. 4 बाई 2 कर लो, कितना आएगा? 0 आ जाएगा यहां पर. ओके, आर यू एबल टू गेट इट और नॉट? नाउ CCl4. CCl4, how do we find Q here? Q is equal to number of electron in outermost shell. Q is equal to number of valence electron in outermost shell of all the atoms. So कितने हो गए यहाँ पर? कितने होते हैं? 4 प्लस 28. So 32. Now bond pair electron. How many? 4, 8. Now lone pair electron. 24. Now we can easily make this
Can you easily make the structure now? I'm not going to now count every electron here. So Cl, 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 Cl. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Okay, simple now. Everyone has its octet complete, right? Now this methane, now I'm not going to count this, I'll just make the Lewis dot structure here. Okay, C H H H H. You see any lone pair here? कितने लोन पेयर दिख रहे हैं यहाँ पर? कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है यहाँ पर. ओके, BeCl2. अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम होता है ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है. अब देखो यहाँ पर जो बेरिलियम है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? क्या बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है? एक बार और बना देते हैं, एक बार अच्छे से और बना देते हैं. BeCl एंड Cl. क्या यहाँ पर बेरिलियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, यहाँ पर बेरिलियम के पास 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्लोरीन का कंप्लीट है लेकिन बेरिलियम का कंप्लीट नहीं है. तो ऐसा क्यों है? ये जो होता है कैसा होता है? हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है. यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है. याद रखोगे कि क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. NO3 माइनस कर लोगे, बताया था मैंने, होमवर्क के लिए कर लोगे. अब ये वाला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल इज. इनमें से बताओ कौन सा एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के लिए? बताओ मुझे. BF3 है, क्यों? कंप्लीट है क्या इसका ऑक्टेट? नहीं है. चेक करो और कौन कौन से हो सकते हैं. BeF2 अभी बताया मैंने, BeCl2 बताया, वैसे BeF2 भी रहेगा. और कौन कौन सा हो सकता है? यहाँ पर मीथेन का कंप्लीट है, NO2 का कंप्लीट है, CO2 का भी कंप्लीट है, H2SO4 का है, H2SO4 का नहीं है. और बताओ मुझे कौन सा कंप्लीट नहीं है. सो SiF4 का चेक करो कंप्लीट है कि नहीं है. SiF कंप्लीट है. फ्लोरीन का भी कंप्लीट है तो ये भी नहीं होगा. और ClO2 का चेक करो, ClO Cl का कंप्लीट है, ClO2 का. सो आई थिंक आप लोग ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेंगे. ओके, सारे स्ट्रक्चर्स जो है बनाकर चेक करने हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जितने भी हैं, और फिर चेक करना है कि किसका जो है सेंटर जो है किसका एक्सपेंड कर रहा है. एक्सपेंड यानी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस में है, या फिर जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, जैसे BeCl2 BeF2 हो गया या BF3 हो गया. ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं. क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी होती है. ठीक है, तो ये कर लोगे क्वेश्चंस. ठीक है, इसमें मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं जेई में, बट ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, थैंक यू.